Hello everyone. Welcome to Prep for IISER. I am Aseem Anand. I've done my BTech in Electronics and Electrical Communication Engineering from IIT Kharagpur, and I will be your maths mentor for the IIT 2027 Droppers batch. In this batch, I will be covering the complete class 11th and 12th important chapters for biology background students with concept-based learning, exam-oriented practice, and previous year's questions discussions. As you know, in IIT, maths is a compulsory subject. So if you are a bio background student, you can follow my lectures for your IIT preparation. This lecture is a free demo class from our IIT 2027 Droppers batch so that you can experience our teaching methodology before joining. Our IIT 2027 Droppers batch has already started. If you're serious about securing a seat in an IISER, this is the right time to begin your preparation. You can find the complete batch details on the Prep for IISER app. The download link is available in the description below. If you have any questions regarding the batch, admissions, or preparation strategy, feel free to contact our support team. We are always happy to help. Now, without wasting any time, let's begin our first chapter, Basic Mathematics and Sets. Let's get started. Welcome to this lecture on sets. Here's a brief overview of the topics जो हम cover करेंगे आज के lecture में. पहले हम देखेंगे कि what is the definition of set. उसके बाद फिर हम देखेंगे कि what are some of the common notations. फिर हम देखेंगे what are the different representations of sets. फिर हम types of sets देखेंगे, intervals, set operations and Venn diagrams. और फिर हम देखेंगे laws of algebra of sets and some important results on sets. इतना पढ़ने के बाद फिर हम some PYQs solve करेंगे. Let's start with the basic definition of a set. कि आखिर set क्या होता है? तो set एक well defined collection है. किस चीज का कलेक्शन है? ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि देयर इज जीरो सब्जेक्टिविटी. अब सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? तो वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो लेट्स से मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया कि द कलेक्शन of all difficult problems in maths. तो अब ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है. दो लोगों के लिए डिफिकल्ट का जो डेफिनेशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है. एक इंसान के लिए जो प्रॉब्लम इजी हो, सेम प्रॉब्लम किसी दूसरे इंसान के लिए डिफिकल्ट हो सकता है. तो क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सेट. ये जो कलेक्शन है ये एक सेट नहीं है. अब एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस दैन 10. तो आप ये किसी से भी पूछेंगे तो उनका सेम ही आंसर होगा कि दिस इज 2, 3, 5 एंड 7. अब क्योंकि ये जो 2, 3, 5, 7 है ये डिस्टिंक्ट है, क्योंकि ये यूनिक है, इसीलिए दिस कलेक्शन इज अ सेट. आगे बढ़ते हैं. अब हम कुछ स्टैंडर्ड जो नोटेशंस है वो देख लेते हैं. तो पहला नोटेशन है n, which is the set of all natural numbers. Natural numbers क्या होता है? 1, 2, 3 and so on. Second notation w, which is the set of all whole numbers. तो whole numbers क्या है? Natural numbers plus 0. तो 0, 1, 2, 3 and so on. Then third comes z, which is the set of all integers. तो integers क्या है? तो 0, 1, 2, 3 and so on. और नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन. तो ये है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जिसको हम z से डिनोट करते हैं. अब आते हैं q. q मतलब रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं. नेक्स्ट r, which is the set of all real numbers. तो रियल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स. And finally, you have the set of all complex numbers जिसको हम C से डिनोट करते हैं. देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. तो अब दो तरह के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं.
पहला रिप्रेजेंटेशन होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म जिसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जो भी एलिमेंट्स हैं उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं, ठीक है, और उनको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि V इज द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसको हम क्या लिखेंगे, A E I O U। अगर हमने इस तरह से एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेट करके लिख दिया है तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म। दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि उसको हम जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी या एक रूल के तहत हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे बता देते हैं कि x सच दैट, ये कोलन मतलब सच दैट x इज अ वॉवेल फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली एलिमेंट्स को लिखा नहीं है, मतलब A E I O U लिखा नहीं है, हमने बस रूल बता दिया है कि x इज अ वॉवेल फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब जो भी एलिमेंट्स इस सेट में है वो इस रूल को सैटिस्फाई करें। ओके, इनहेरेंटली ये दोनों सेम ही है, लेकिन बस खाली रिप्रेजेंटेशन दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंट जो टाइप्स हैं सेट्स के, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा नल सेट। नल सेट मतलब क्या, तो नल सेट इज अ सेट विच हैज 0 एलिमेंट्स कंटेनिंग नो एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग टू रियल, ठीक है, यहाँ पे इसका साइन मतलब बिलोंगिंग टू रियल, तो x बिलोंगिंग टू रियल सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, लेकिन ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये तो रियल नंबर्स नहीं है, यानी कि कोई भी रियल वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज अ नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं और इसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ नल सेट और एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, उसके बाद आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब क्या, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। सिंगल यहां से भी आप देख सकते हैं, सिंगल मतलब ओनली वन, ठीक है, तो सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। तो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे लेट्स से कोई एक सेट बी है जिसमें x बिलोंगिंग टू इंटीजर्स सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तब यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 0, और सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकता है और 0 एक इंटीजर है, तो यानी कि b इज इक्वल टू द सेट, द सिंगलटन सेट हैविंग द एलिमेंट 0, ठीक है। तो क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है इसीलिए ये एक सिंगलटन सेट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन कम्स फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स किसको कहते हैं, तो फाइनाइट सेट्स वो होता है जिसमें कि इफ इट्स एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, अगर हम किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स से कोई सेट C है, C इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं, 3 ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो इसीलिए ये फाइनाइट सेट। ओके, देन कम्स इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है कि इसके एलिमेंट्स को हम एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, और रादर वी शुड से कि मतलब काउंटिंग नेवर फिनिशेस, नेवर एंड्स। जैसे सिंपल एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलते ही जाएगा, इसको कभी गिनती कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, तो इसलिए दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। ओके, फिर उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, दो, पहले तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट्स हैं, और इक्विवेलेंट मतलब किसी भी दो सेट की बात कर रहे हैं, तो टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। याद रखिए यहां पे हम सिर्फ कह रहे हैं कि उनके नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक सेट है a इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, दूसरा सेट है v इज इक्वल टू x y एंड z, तो ये दोनों, क्योंकि इन दोनों सेट्स में 3 एलिमेंट्स ही हैं, इसीलिए ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है, क्योंकि दोनों सेट्स में 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आप नोट करिए कि यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं है, बस इनकी जो गिनती है, जो कार्डिनैलिटी है, कार्डिनैलिटी मतलब जितने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो सेट्स में वो सेम है, ठीक है, इसीलिए हम इन दोनों सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं।
देन कम्स इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स मतलब क्या कि पहले तो अगेन यहां पे टू सेट्स हैविंग सेम आइडेंटिकल एलिमेंट्स। अगर किसी दो सेट में अगर आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं तो हम उसको कहेंगे कि वो दोनों इक्वल सेट्स हैं। और नोट दैट रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर, रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर, यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर दो सेट है 1 2 एंड 3, दूसरा सेट है b इज इक्वल टू 3 2 एंड 1, तो क्योंकि ये दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, नेमली 1 2 एंड 3, इसीलिए ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसेट किसको कहते हैं। पहले हम सबसेट देख लेते हैं। तो सबसेट किसको कहते हैं? तो जैसे लेट्स से कि दो सेट है a एंड b, और every element of A is present in B, then we say that A is a subset of B। ठीक है, और इसको हम लिखते कैसे हैं? A is a subset of B, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब A is a subset of B, तो मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में है, तो यहां पे A is a subset of B, और B को हम कहते हैं कि B is a superset of A। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? B is a superset of A। ठीक है, तो ये हो गया सबसेट्स एंड सुपरसेट्स। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे लेट्स से हमारा सेट अगर लेट्स से A इज इक्वल टू 1,2 है, और लेट्स से B इज इक्वल टू 1,3, 1,2 एंड 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A के सारे एलिमेंट्स B में है, तो यानी कि A इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, एंड B इज अ सुपरसेट ऑफ A। अब यहाँ पे सबसेट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं? तो प्रॉपर सबसेट की मतलब जैसे लेट्स से अगेन दो सेट है A एंड B, A इज अ सबसेट ऑफ B बट A इज नॉट इक्वल टू B। तो अब A इज अ सबसेट ऑफ B मतलब A के सारे एलिमेंट्स तो B में है ही। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B इज नॉट इन A। ठीक है, मतलब B में एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। ओके, तो ये आपका हो गया प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? तो इम्प्रॉपर सबसेट में अब जैसे सेट A है, ठीक है, तो लेट्स से सेट A है 1,2 लेट्स से, तो हम क्या हम कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ A? कह सकते हैं, क्योंकि 1, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1,2 है, 1,2 राइट हैंड साइड में 1,2 है, तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें है, राइट। तो यहाँ पे A इज अ सबसेट ऑफ A तो है ही, एवरी सेट इज ऑटोमेटिकली अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये जो एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी है इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जैसे 1 2 3 इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3। ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एंड एवरी ही जो आइडेंटिकल कॉपी है इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। देन कम्स पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? तो अब एक सेट है तो उसके जितने भी सबसेट्स हैं, तो इट इज द मास्टर सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है, नोट दैट यहां पे मास्टर सेट सारे सबसेट्स मतलब क्या कि बोथ प्रॉपर एज वेल एज इम्प्रॉपर, प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर दोनों ही चाहिए। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट्स से A इज इक्वल टू 1,2 है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 1,2 इसके क्या क्या सबसेट्स बन सकते हैं? तो पहला तो एक सबसेट होगा 1, दूसरा सबसेट होगा 2, फिर हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि हर सेट खुद का ही सबसेट होता है विच इज द इम्प्रॉपर सबसेट, तो 1 2 तो होगा ही, एंड एक और सबसेट होता है विच इज द एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ, ये दोनों हर सेट के सबसेट्स होंगे, और ये जो चार हैं ये इस सेट का पावर सेट। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो हम देख लेते हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट
इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। n क्या है? n इज इक्वल टू द कार्डिनैलिटी ऑफ a, मतलब a में कितने एलिमेंट्स है बेसिकली वो है। जैसे यहाँ पे देखिए a में कितने एलिमेंट्स थे? a में 2 एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो पावर सेट में कितने होने चाहिए इस फॉर्मूला के हिसाब से? 2 रेज टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। और 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो इसी के लिए हम कहते हैं कि पावर सेट ऑफ अ सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 रेज टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पावर सेट से रिलेटेड, तो वो भी हम देख लेते हैं। अगर आपको याद होगा बाइनोमियल थ्योरम से कि बाइनोमियल थ्योरम में nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन अप टिल ncn इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर, ये बाइनोमियल थ्योरम का एक रिजल्ट है। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अब लेट्स से कि एक गिवन सेट है, उसके बहुत सारे सबसेट्स बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स विथ ओनली 1 एलिमेंट या विथ 0 एलिमेंट्स, 0 से शुरू करते हैं, विथ 0 एलिमेंट्स। तो वो क्या होगा? nc0, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं थे सेट में से, उनमें से हमें सिर्फ 0 एलिमेंट्स चुनना है, तो वो हम nc0 वेज में कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यही बेसिकली हमारा जो फाई है वही है बेसिकली, ठीक है। ये फाई जो एम्प्टी सेट, जो नल सेट था, वही है बेसिकली 1, ठीक है। सिमिलरली द नंबर ऑफ सबसेट्स विद 1 एलिमेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका nc1, ठीक है। उसी तरह से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अब एक सेट में क्योंकि n एलिमेंट्स है तो मैक्सिमम हम सिर्फ n एलिमेंट्स चुन सकते हैं, तो इसलिए तो मैक्सिमम यहाँ पे ncn होगा, विच इज अगेन इक्वल टू 1। और ये 1 कहां से आ रहा है? द सेट इटसेल्फ। तो आप इन सबको अगर आप ऐड करेंगे nc0 nc1 nc और nc2 एंड सो ऑन अप टिल ncn, तो आपको 2 रेज़ टू द पावर n मिलता है। तो ये पावर सेट का जो फॉर्मूला है यहीं से आता है। और आपको ये चीज याद रखनी, क्योंकि एक PYQ आया था जिसमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन था। ओके, वो हम देखेंगे आज के टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर। अब आते हैं हम इंटरवल्स में। तो इंटरवल्स क्या होता है? तो इंटरवल्स बेसिकली, इंटरवल्स आर इनफाइनाइट कंटिन्यूअस सबसेट्स ऑफ R। R मतलब द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो इनफाइनाइट है और कंटिन्यूअस सबसेट्स। तो अब इसमें इंटरवल्स में भी 2-3 तरह के इंटरवल्स होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब क्या? पहले तो हम कैसे डिनोट करते हैं इसको? तो इसको हम डिनोट करते हैं ओपन ब्रैकेट्स या सर्कुलर ब्रैकेट्स से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो x बिलोंगिंग टू R, x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच दैट x लाइज बिटवीन a एंड b। नोट दैट यहाँ पे a एंड b इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये एक्सक्लूडेड है। जो एंड पॉइंट्स है वो एक्सक्लूडेड है ओपन इंटरवल पे। ओके, इसको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो जैसे अगर नंबर लाइन है अगर इस तरह का आपका, ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे जो भी 2 पॉइंट्स हैं, लेट्स से अगर यहाँ पे पॉइंट है A और यहाँ पे एक पॉइंट है B, तो ओपन इंटरवल में हम हॉलो सर्कल्स के थ्रू हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारा पूरा इंटरवल हमने ले लिया है, मतलब A और B के बीच के सारे पॉइंट्स हैं बट A एंड B इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ओपन इंटरवल। उसी तरह से हम हमारे पास आता है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है? क्लोज इंटरवल पहले कैसे डिनोट करते हैं? क्लोज इंटरवल को हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगेन सबसे पहले x किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, ठीक है। सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, लेस देन और इक्वल टू b। नोट दैट यहाँ पे जो n पॉइंट्स है वो इंक्लूडेड है इस पर्टिकुलर सेट में, ओके। तो अगेन इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका? तो यहाँ पे जो पॉइंट्स थे A एंड B, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, सॉलिड डॉट से डिनोट करते हैं। और ये पूरा इंटरवल आपका आ गया, ठीक है। तो ये है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये सॉलिड डॉट्स मतलब कि A एंड B इंक्लूडेड, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ओके। देन अब नेक्स्ट आता है सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल मतलब क्या? कि एक साइड आपका क्लोज रहेगा और दूसरे साइड आपका ओपन रहेगा, ठीक है, जैसे ये या फिर ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू a लेस दैन b, b एक्सक्लूडेड है,
और इसका मतलब क्या हो गया कि x ग्रेटर देन a बट लेस देन और इक्वल टू b, b इंक्लूडेड है बट a एक्सक्लूडेड। याद रखिएगा अगर यहाँ पे इस तरह का ब्रैकेट है मतलब ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे ये वाला जो एंड पॉइंट है वो एक्सक्लूडेड होगा। सिमिलरली अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये वाला एंड पॉइंट इंक्लूडेड। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि द कंटिन्यूअस रियल नंबर्स बिटवीन 2 and 5 इंक्लूडिंग, मतलब बिटवीन 2 and 5, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 बट एक्सक्लूडिंग 5। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? तो इंक्लूडिंग 2 है तो मतलब कौन सा आएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा इंक्लूडिंग 2, और एक्सक्लूडिंग 5 है तो इस तरह का ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इंटरवल्स। तो अब हम देखते हैं सेट ऑपरेशंस यूजिंग वेन डायग्राम्स। तो उसके लिए पहले कुछ टर्म्स है वो हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला टर्म है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स फॉर द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, फॉर द गिवन प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है उसके जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं उसका जो सेट है दैट इज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अभी हम आगे जितने भी ऑपरेशंस देखेंगे उसके लिए हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं सेट्स के। तो लेट्स से कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो लेट्स से है 1 2 3 4 5 6 and 7, मतलब 1 से लेके 7 तक सारे नेचुरल नंबर्स, सारे इंटीजर्स। देन हमारा लेट्स से हम दो सेट डिफाइन करते हैं, ए एज 1 2 3 and 4, और दूसरा सेट हम डिफाइन करते हैं एज 3 4 5 and 6। ठीक है, तो हम लेट्स मूव टू द फर्स्ट सेट ऑपरेशन विच इज कॉल्ड यूनियन। तो पहले तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो इसको हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी, इस तरह से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आइदर इन ए, मतलब द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए या आइदर इन बी या बोथ, और सब जगह और है। ठीक है, और बोथ इन ए एंड बी। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। और हम राइट हैंड साइड में देखते हैं इसका वेन डायग्राम कैसा दिखता है। ठीक है, तो लेट्स से कि सेट ए को लेट्स से कि हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया हमारा सेट ए। ओके, सेट बी को हम लेट्स से ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया हमारा सेट बी। ओके, एंड लेट्स से हमारा ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल्स के थ्रू डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। तो अब देखिए यहाँ पे जो यूनियन ऑपरेशन है, तो यूनियन मतलब कौन सा रीजन है, कौन सा रीजन होगा यूनियन मतलब? यूनियन मतलब ये रीजन, आइदर इन ए, तो ये मतलब ये पूरा ए का हो गया पार्ट, या फिर आइदर इन बी या इन बोथ। ठीक है, तो ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी। नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे हम डिनोट करते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी। याद रखिए दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब इधर आप कह सकते हैं कॉमन एलिमेंट्स या फिर ओवरलैप, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अगेन इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं क्विकली। तो वी हैव दिस सेट ए, देन वी हैव द सेट बी, ठीक है, एंड देन वी हैव द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा रीजन कॉमन है दोनों के बीच में? ए और बी में कौन सा रीजन ओवरलैप कर रहा है? तो ये रीजन, राइट। तो ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम, इसी को वेन डायग्राम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस। डिफरेंस हम कैसे डिनोट करते हैं? तो डिफरेंस इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्स इन ए एंड नॉट इन बी। याद रखिएगा, मतलब जो एलिमेंट्स ए में है बट बी में नहीं है, सिंपल। अगेन वेन डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं। तो वेन डायग्राम्स में यू हैव ए, ठीक है, यू हैव बी एंड देन यू हैव द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो कौन सा रीजन है जो विच डिनोट्स की जो ए में है और बी में नहीं है? तो ये वाला रीजन, राइट। नोट दैट अगर हम ये बीच इंटरसेक्शन वाला ले लेंगे तो वो बी में भी प्रेजेंट है, इसीलिए हमने वो नहीं दिया है।
तो ये कुछ इस तरह का बन के आता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरह का, ये आपका a माइनस के। लेट्स लुक एट सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? तो दिस इज डिनोटेड बाई a डेल्टा e। इसका मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब हो गया एलिमेंट्स इन a और b बट नॉट इन बोथ, ठीक है। अगेन इसका वेन डायग्राम कैसा होगा? वेन डायग्राम के लिए हम क्विकली a बना लेते हैं, देन यू हैव द सेट b एंड यू हैव द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो एलिमेंट्स इन a और b बट नॉट इन बोथ। तो पहले तो जो नॉट इन बोथ मतलब ये जो बीच वाला पोर्शन है उसको आप हटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द एलिमेंट्स इन a और b बट नॉट इन बोथ। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स a एंड b। ठीक है, और इसको हम कैसे यहां पे कैसे लिख सकते हैं इसको? तो बेसिकली दिस इज a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन। ठीक है, a यूनियन b आप याद करिए ये पूरा शेडेड रीजन था, उसमें से अगर हम ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देंगे तो हमें सिमेट्रिक डिफरेंस बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? तो a कॉम्प्लीमेंट और a ऊपर में c। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन a। ठीक है, तो देख लेते हैं अगेन वेन डायग्राम के थ्रू। तो वेन डायग्राम में पहले लेट्स से कि वी ड्रॉ द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और यहां पे हमारा सेट लेट्स से ये सेट है a। तो क्या बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट के जितने भी पॉइंट्स बट वो a में नहीं होने चाहिए। तो क्विकली हम शेड कर देते हैं कौन सा रीजन होगा। तो आज जैसा आपने गेस किया सही से, ये रीजन है। सारे पॉइंट्स हो गए यूनिवर्सल सेट के, बट ये जो a में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हमने हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो ये आपका a कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, याद रखिए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में होता है। नाउ लेट्स लुक एट डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स मतलब क्या होता है कि मतलब टू सेट्स which that have zero elements in common। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटरसेक्शन b मतलब उनके बीच का जो कॉमन एलिमेंट्स या इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फाइव द नल सेट या एम्प्टी सेट, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए 1,2 एंड 8,9, ये जो दो सेट्स हैं ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स कैसे दिखेगा आपका वेन डायग्राम में? तो वेन डायग्राम में इनके बीच में कोई भी ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, इनके बीच में कोई भी ओवरलैप नहीं होगा, ये इस तरह से दिखे। ओके, और यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन लेट मी ड्रॉ द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके बीच में कोई भी ओवरलैप नहीं है। तो अब हम कुछ लॉज देख लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो पहला है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आइडेम्पोटेंट मतलब क्या? तो आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि अगर लेट्स से कोई भी सेट है आपका A, तो A यूनियन विद इटसेल्फ इज द सेम सेट A एंड A इंटरसेक्शन विद द सेट इटसेल्फ इज आल्सो द सेम सेट A। ठीक है, इसका मतलब क्या, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि मतलब किसी भी सेट का खुद के साथ जो ओवरलैप है वो भी ओवरलैप मतलब इंटरसेक्शन वो द सेट इटसेल्फ है। ठीक है, और उसका यूनियन भी द सेट इटसेल्फ। नेक्स्ट इज द आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि A यूनियन 5 इज इक्वल टू A एंड A इंटरसेक्शन विद द यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू आल्सो A। मतलब क्या कि अगर हम इफ वी ऐड नथिंग टू A, नथिंग, ये 5 क्या है? 5 एक तरह से एम्प्टी सेट है, नल सेट है, तो हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे A में, तो कुछ भी नहीं ऐड कर रहे तो A ही रह जाएगा, राइट। फिर A इंटरसेक्शन U, तो A क्योंकि ये छोटा सेट है, यूनिवर्सल सेट का एक बहुत ही छोटा सेट है, तो अगर हम ओवरलैप देखेंगे तो छोटा सेट ही रह जाएगा, राइट। छोटा सेट वर्सेस द एंटायर यूनिवर्स, इनके बीच अगर हम इंटरसेक्शन देखेंगे तो वो छोटा सेट ही रह जाएगा, राइट। तो ये आपके दो आइडेंटिटी लॉज है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि A यूनियन B इज सेम एज B यूनियन A एंड A इंटरसेक्शन B इज सेम एज B इंटरसेक्शन A। मतलब इट डजंट मैटर कि आप पहले A
अब पहले ए और बी का यूनियन ले रहे हैं या बी और ए का यूनियन ले रहे हैं, वो रिजल्ट सेम ही आएगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच का मतलब आप पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ए लिख रहे हैं या राइट हैंड साइड में ए लिख रहे हैं, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है। नेक्स्ट कम्स एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए, लेट्स से अगर आपके पास 3 सेट्स हैं, ए बी एंड सी, ये 3 सेट्स हैं, ओके। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसको हम अगर सॉल्व करना है तो इट डजेंट मैटर कि पहले हम ए यूनियन बी लेके उसके बाद हम यूनियन सी लेते हैं, या फिर पहले हम बी यूनियन सी लेते हैं और उसके बाद फिर हम ए के साथ यूनियन लेते हैं, तो इट डजेंट रियली मैटर, ठीक है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में भी वही चीज है कि ए इंटरसेक्शन बी आप पहले लेके उसका इंटरसेक्शन विद सी लीजिए, या फिर ए इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन सी लीजिए, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कि आप ये जो यूनियन ऑपरेशन या इंटरसेक्शन ऑपरेशन है ये किसके साथ आप एसोसिएट करते हैं पहले, इट डजेंट मैटर। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है, ये पहला है। दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज सेम एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब क्या कि ये जो यूनियन ऑपरेशन है ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। पहले ए यूनियन बी निकाला हमने, फिर उसके बाद उसका इंटरसेक्शन ले लिया किससे, ए यूनियन सी से। ये यूनियन ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। सिमिलरली ये जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन है वो भी यूनियन ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है सेकंड वाले लॉ में। ए इंटरसेक्शन बी पहले हमने निकाला, उसका यूनियन दिया हमने ए इंटरसेक्शन सी से। तो ये आपके थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस विच इज कॉल्ड द डी मॉर्गन्स लॉस। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, तो डी मॉर्गन्स के 2 लॉस हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी, इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। एंड सिमिलरली अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है इन दोनों लॉज में, कैसे याद रखेंगे हम। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले आप कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेके चले जाइए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये जो अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। एक तरह से हम इसका भी कॉम्प्लीमेंट एक तरह से ले रहे हैं। यूनियन था तो वो इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन था तो यूनियन हो गया, ठीक है। तो ये आपके हैं डी मॉर्गन्स लॉस। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा आपको, फाई, और ए यूनियन विद ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेंगे आपको, यूनिवर्सल से। तो अगर इसको हम वेन डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे तो आपको याद होगा कि जैसे ये यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे हमने ये ए है, ठीक है। तो ए तो ये सेट हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इज दिस सेट, इसके अलावा सब कुछ यूनिवर्सल सेट में जो भी है। तो इन दोनों का अगर आप यूनियन लीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, यूनिवर्सल सेट, और इन दोनों के बीच का अगर आप इंटरसेक्शन लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, फाई, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट लॉस। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन सेट्स। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी सी ये 3 फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है, और यू है हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और एन ए दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। तो पहला रिजल्ट देखते हैं कि पहला क्या है। तो पहला रिजल्ट ये है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज सेम एज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स से ये हमारा ए था, सेट ए, और ये है हमारा सेट बी, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या, मतलब हमने पहले जितने भी ए के एलिमेंट्स है वो हमने पहले ले लिया, तो ए के एलिमेंट्स मतलब ये सारे एलिमेंट्स आ गए। फिर हमने क्या किया, बी के सारे एलिमेंट्स ले लिया, तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए, राइट। अब आप देखिए ये जो बीच वाला जो पोर्शन है इसको हमने 2 बार ऐड कर लिया, एक बार ए के टाइम पे ऐड किया, एक बार बी के टाइम पे ऐड किया, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, प्लस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इससे आपका ए यूनियन बी मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट, एन ऑफ ए यूनियन बी, अगर if this is equal to n of a plus n of b, then this implies both ways
कि A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, क्यों? क्योंकि देखिए हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो अगर आपको दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B, तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B 0, और यही हमारा डिसजॉइंट सेट्स का डेफिनेशन है कि इनके बीच का जो कॉमन है इंटरसेक्शन है, मतलब n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। इनके बीच का जो भी इंटरसेक्शन है, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इनमें कोई भी ओवरलैप नहीं है, ठीक है। तो ये आपका, अगर इस तरह का अगर आपको दिया हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड रिजल्ट है n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू समेशन n ऑफ A माइनस समेशन n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो समझते हैं इसको क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि A यूनियन B यूनियन C, अगर इसका आपको कार्डिनैलिटी फाइंड करना है तो पहले आप जितने भी सेट्स है उसका कार्डिनैलिटीज को आप ऐड कीजिए, मतलब n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C। ये समेशन n ऑफ A का मतलब वही होता है, n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C। फिर उसके बाद आप वहां से सब्ट्रैक्ट करिए A, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स टेकन टू एट अ टाइम, मतलब A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट्स हैं, B इंटरसेक्शन C में कितने एलिमेंट्स हैं, और A इंटरसेक्शन C में कितने एलिमेंट्स हैं, इन तीनों को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद आप क्या ऐड करिए, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने इंक्लूड किया जितने भी सेट्स थे क्वेश्चन में, उन सबको इंक्लूड कर लिया। उसके बाद उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया, क्या एक्सक्लूड किया हमने, जितने भी जो भी सेट्स थे टेकन टू एट अ टाइम, उनके बीच का जो भी कॉमन पोर्शन है उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर हमने फिर से क्या इंक्लूड किया कि जो भी सेट्स हैं टेकन 3 एट अ टाइम, उसको हमने, उनका बीच का जो इंटरसेक्शन है उसको हमने ऐड कर दिया। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। पहले हम इंक्लूड करेंगे, फिर हम एक्सक्लूड करेंगे, फिर हम इंक्लूड करेंगे एंड सो ऑन। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए 4 सेट्स रहते तो पहले हम चारों सेट्स का ऐड कर देते, चारों सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं वो ऐड कर लेते, फिर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते टेकन 2 एट अ टाइम, इंटरसेक्शन टेकन 2 एट अ टाइम, फिर उसमें हम ऐड करते इंटरसेक्शन टेकन 3 एट अ टाइम, फिर हम फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटरसेक्शन टेकन 4 एट अ टाइम। तो इस तरह से आप ऑल्टरनेटिवली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट इज n ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इसको समझते हैं वेन डायग्राम्स के थ्रू। तो दिस इज योर सेट A, देन दिस इज योर सेट B, ठीक है। तो अब हम राइट हैंड साइड के थ्रू देखते हैं पहले। तो राइट हैंड साइड में क्या है, n ऑफ A। तो n ऑफ A कौन सा रीजन है, n ऑफ A इज दिस रीजन, ये कंप्लीट रीजन है n ऑफ A, ठीक है। और n ऑफ A इंटरसेक्शन B कौन सा रीजन है, तो इंटरसेक्शन इज दिस पर्टिकुलर रीजन, ये इंटरसेक्शन। तो अगर आप ये ब्लू वाले रीजन में से अगर आप ये रेड रीजन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू विल बी लेफ्ट विथ समथिंग लाइक दिस। आपको इस तरह का कोई डायग्राम मिल जाएगा, राइट। दिस इज सेम एज A minus B. Okay, so therefore n of A minus B, the cardinality of the set A minus B is same as the cardinality of A minus the cardinality of A intersection B. आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट रिजल्ट है दैट इज रिलेटेड टू सिमेट्रिक डिफरेंस। तो n ऑफ A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस 2 टाइम्स n ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन से, तो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ सेट A और उसके बाद वी विल ड्रॉ सेट B। अब बेसिक डेफिनेशन क्या था सिमेट्रिक डिफरेंस का, ए सिमेट्रिक डिफरेंस B क्या था, ऐसे एलिमेंट्स जो A में हो B में हो लेकिन दोनों में नहीं होने चाहिए। तो कौन सा रीजन था, तो इट वाज A माइनस B एंड यूनियन विथ B माइनस A। तो दिस वाज द रीजन। तो अब राइट हैंड साइड के थ्रू देखते हैं। तो n ऑफ A क्या है, तो n ऑफ A बेसिकली द एंटायर एवरीथिंग A के अंदर जो भी है, तो उसमें से अगर आप A इंटरसेक्शन भी अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू विल लेफ्ट विद दिस, जस्ट दिस रीजन, जो ये शेडेड रीजन अभी यहां पे है।
सिमिलरली अगर आप n ऑफ b में से अगर ये इंटरसेक्शन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू विल बी लेफ्ट विद दिस ग्रीन शेडेड रीजन. तो therefore we have that RHS is equal to the cardinality of A symmetric difference B. तो इसीलिए जब भी आपको सिमेट्रिक डिफरेंस की कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, A की कार्डिनैलिटी प्लस B की कार्डिनैलिटी माइनस 2 टाइम्स द कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. याद रहे यहां पे एक नंबर है विच इज 2. ठीक है, क्योंकि हमें 2 बार सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि एक बार वो n ऑफ A में आएगा और दूसरी बार वो n ऑफ B में आएगा, तो इसलिए हम 2 बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं. तो n ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू n ऑफ यूनिवर्स माइनस n ऑफ A. बेसिकली यूनिवर्स में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है कि A में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपको मिल जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7. n ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू n ऑफ यूनिवर्स माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. ठीक है, ये भी देखिए डायरेक्टली डी मॉर्गन्स लॉ से ही आता है. ठीक है, क्योंकि हमें पता है, अभी हमने जस्ट डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ा था कि A इंटरसेक्शन B का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो अगर हमें ये A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स ये फाइंड करना है, तो हमें ये फाइंड करना होगा कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, और A किसी भी कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स है ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, यूनिवर्स में कितने एलिमेंट्स है ये फाइंड करेंगे माइनस उस पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो इससे हमें उसके कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स है ये मिल जाएगा. ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे आपको n ऑफ A इंटरसेक्शन n ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, n ऑफ यूनिवर्स माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. ठीक है, उसी तरह से हमारा एक और रिजल्ट है बेस्ड अगेन ऑन डी मॉर्गन्स लॉ. वो क्या है कि n ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू n ऑफ यूनिवर्स माइनस n ऑफ A यूनियन B. अगेन ये डी मॉर्गन्स लॉ से ही फॉलो करता है, क्योंकि वहां पे हमने देखा था कि A यूनियन B का अगर हम पूरा का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. तो इसमें अगर कितने एलिमेंट्स है ये अगर हमें फाइंड करना है तो वो इस कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स है ये फाइंड कर लेंगे तो मिल जाएगा. तो कॉम्प्लीमेंट में फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्स में से जो उस सेट में यूनियन में कितने एलिमेंट्स है ये फाइंड कर लेंगे तो मिल जाएगा हमें. ठीक है, तो n ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज n ऑफ यूनिवर्स माइनस n ऑफ A यूनियन B. एक और रिजल्ट है वो देख लेते हैं. तो n ऑफ A1 यूनियन A2 एंड सो ऑन यूनियन AK इज इक्वल टू n ऑफ A1 प्लस सो ऑन अप टू n ऑफ AK. तो ये क्या कह रहा है, तो लेट्स से कि A1 A2 AK आपको K सेट्स दिए हुए हैं, तो A1 A2 A3 एटसेट्रा ये आपके सेट्स हैं, और वो कैसे सेट्स हैं, तो वो बेसिकली डिसजॉइंट सेट्स हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, मतलब किसी भी दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो इनका यूनियन अगर आप चाहेंगे कि n ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन एंड सो ऑन अप टिल AK, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जितने भी सेट्स हैं उनको इंडिविजुअली कितने एलिमेंट्स हैं उन सब सेट्स में वो आपको ऐड कर देना है, तो उससे आपको इसके यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं वो मिल जाएगा. ठीक है, याद रहे ये सिर्फ तभी होगा जब A1 A2 A3 ये जितने भी सेट्स हैं वो म्यूचुअली डिसजॉइंट है, मतलब किसी भी दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. ओके